Hello everybody, welcome to Civil Staff Himachal. Today I'm going to discuss a very important part of your mains exam, paper number 2, and the topic is cyber crime and cyber security. So every year 2 to 3 questions are supposed to ask from this part, and this is not a kind of section which we could take lightly. Beside this, every citizen of India must aware about these basic terminology, because nowadays we are here and there heard about the incidents of cybercrime, and if we are not aware about these basic concepts, things are also going difficult for us. So चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक from the basic introduction of cyber world. So the place in which we are living today is a world of technology, is the world of digitalization. Every sphere of life somewhere associate with the digital world. For example, if we are going outside, we need bus, car, or any other vehicle. We need technology. If I can say we are virtually interacting with people, again we are using electronic gadgets. If we want to amuse ourselves, we are just taking our phone up and start watching videos. Again, these technology is helping us. So we can say that we are engaged a lot in this digital platform or in this cyber space. All right. So, and it is really very difficult for someone else to keep oneself aloof from it. And therefore, Government of India also initiated number of digital platforms to promote the e-governance, to promote the e-services, e-transactions. All right. If I'm talking about this COVID period, so this cyber platform is a boon for all of us. And the engagement of people has increased a lot. According to the data of Niti Aayog, around 730 million people are now internet users in India. So you can see the huge amount of people, those were not that much interested in digital world, are the part of it now. Now, it also have the dark side. As much as the users will increase in it, also the danger of cyber attacks will too. And the funnest example I could give in this context of Big Basket, where Big Basket is a e-grocery platform, and this platform was hacked, and the information or the data of customers were leaked. All right. So the danger of cyber attacks or cyber crime is always there. And in order to protect this cyber space, we need something else. And this, for the term what we use for this is called cyber security. Or we can say that the guardian of cyberspace is basically a cyber security. All right. So let us move towards to understand the basic concepts which are used in cyber world. So the very first one is the cyberspace, cyber warfare, cyber espionage, cyber terrorism, cyber security, cyber crime. Let me start from the very first one, cyberspace. So cyberspace is a kind of place where all the activities take place, the positive ones and the negative too. When I'm talking about the positive one, I'm talking about all the information technology infrastructure, all the computers, telecommunication networks, all other networks, processors and controllers. All right. So we can say that the cyberspace is keep on expanding, and it's the part of internet ecosystem too. In order to understand the engagement of cyberspace, we can go through with these pictures. As we can see that one is study, if one wants to study
So digital platform is the finest one, especially in this COVID period. If one wants to get some uh, if one is doing some shopping and want to get some something else, again there are certain platforms like Amazon, like Flipkart. If one wants to amuse oneself, again one can use this platform. Other than this, they are paying our bills for transactions, for virtually communicating with our loved ones. All right, different kind of games are there on this digital platform, and even to earn our livelihood, which is the key point of everyone's life. Digital world help here too. So the range of digital world or cyberspace is expanding a lot. So this is the positive side. But on the other side, there is a dark aspect of this cyber world too. Now, let us understand that part too through pictures. So we want to interact with people, we want to make new friends, and there is always a threat of fake profiles. Through fake profiles, fake friendships happened which ended drastically. It also dangerous for our privacy, which also give us a very harmful or defame us in society. Other than this, we are talking about e-transactions, we are talking about using the e-services, we are talking about using other digital platforms. But are these all platforms are secure enough? Are our accounts, our details are secure enough? So the answer is no. Number of cases of fraud calls we are even we are receiving ourselves. We are receiving certain messages every day. Now, a thing which could help us when we are talking about these all activities, so there is a particular thing which could help us, and that is cyber awareness. If we are aware enough to understand these all kind of things, we can be get rid ourselves from these all activities. For example, we are receiving messages that someone, you have won this amount of money, and you just send us detail of your accounts, and we'll send you that amount of money to your account. And when we send our account details, what happened, we come to know that that was a fraud call, and we lost our money from our bank accounts. So if we are aware about that fact, that will not happen with us. इसके अलावा भी ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हमारे सामने हमें मिल जाते हैं. ऑल राइट, फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल मैं इस कंटेक्स्ट में देना चाहूँगा. आई वुड लाइक टू शेयर विद यू कि कई बार आप कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, कुछ ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं. वी यूज़ सर्टन ऐप्स like Google Pay, like Flipkart, like Paytm. These platforms we are using, and we add our account details, we add a secret information with these. Now we trust these all organizations, these companies. But what happened after 3-4 years, if the companies were declared bankrupt or they deceive us, then what will happen? We also lost that valuable data of ours, and there is always a threat of cyber breach in our accounts. All right. So if we are aware about, कई बार होता है ना, स्पेशली जब हम करते हैं तो उसमें ये भी आता है कि would you like to save your PIN number, would you like to save your account details or not? ये ऑप्शन इसीलिए दिया जाता है. इफ़ यू डू दैट, so there is always a sense of fear. तो ये छोटी छोटी चीज़ों के बारे में अगर आपको अवेयरनेस है तो आप इस तरीके की एक्टिविटीज से कभी भी फंसेंगे नहीं.
चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं साइबर वॉरफेयर की. सो वी आर लिविंग इन अ काइंड ऑफ वर्ल्ड, वी आर लिविंग इन अ डिजिटल वर्ल्ड एंड a world of competition where every nation wants to grow, and international relation is all about struggle for powers to attain more and more power. All right, so in cyber warfare, cyber technology is used by particular nation to penetrate into their cyber world, to harm their cyber technologies, their processors, their to damage their computer information networks, etc., etc. And mostly cyber warfare are politically motivated. These kind of steps are taken by different nations, and in order to do so, they use certain mediums like computer viruses. And the finest example, Stuxnet virus, जिसने इज़राइल, ईरान, यूएस को खबरों में ला दिया था और बहुत तबाही, बहुत लॉस झेलना पड़ा था ईरान को भी, और खबरों में ये बहुत ज़्यादा रहा था उस टाइम पे. ज़रूर इसके बारे में और डिटेल में आप जानें. ट्राइटन वायरस के बारे में बहुत बार जो है इसका इस्तेमाल किया गया. साथ ही है डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स. सो कंप्यूटर वायरसेस का इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो आपके कंप्यूटर्स हैं, कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं दूसरे नेशंस के, उनको जो है डैमेज किया जा सके, ताकि उन देशों का जो प्रोग्रेस है वो कहीं ना कहीं रुके. ऑलराइट, और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा हार्म पहुँचे. नेक्स्ट है डिनाइल ऑफ सर्विस attacks. So denial of service attack, in short we can say that कि जो सामने वाले की मशीनरी है उसे किस तरीके से हैक किया जाए और उसे किस तरीके से जो है कंट्रोल कर लिया जाए बाय हैकिंग आर्म्स कंट्रोल और मिसाइल मैकेनिज्म ऑफ पर्टिकुलर स्टेट. तो इसके कंटेक्स्ट में कुछ एग्जाम्पल भी हैं जिनको मैं देना चाहूँगा आपको साइबर वॉरफेयर के कंटेक्स्ट में. One of the finest example, the incident of last year when Iran shot down US spy drones, and everyone was expecting a traditional war between US and Iran, but US did not do so. US disabled Iranian missile capabilities by hacking their computer systems. All right, so it is the finest example of cyber warfare. Other than this, we have another example of Israel. What Israel did, Israel first controlled the missile mechanism of Hamas and then attacked over them. All right, so this is also an example. Another important example is a black energy attack. ठीक है, so ये जो अटैक था रशिया द्वारा यूक्रेन पे किया गया था, 2015 का ये इंसिडेंट है, जिसके तहत तकरीबन पावर कट ऑफ कर दी गई थी अराउंड 7 लाख होम्स इन यूक्रेन, जस्ट बाय क्लिकिंग अ सिंगल बटन फ्रॉम रशियाज पार्ट. सो इसी से आपको अंदाज़ा हो रहा है हाउ डेंजरस दिस साइबर वॉरफेयर इज. और इससे भी भयावह जो इसके रिजल्ट्स हैं वो हमें देखने को मिलेंगे आने वाले समय में. ऑल राइट, सो दीज आर सम फाइनेस्ट एग्जाम्पल वी कुड से दैट अबाउट साइबर वॉरफेयर्स. नेक्स्ट इज साइबर एस्पियोनेज. नाउ देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन साइबर एस्पियोनेज एंड साइबर वॉरफेयर. एंड व्हाट इज दिस डिफरेंस? It is basically that cyber warfare was designed to damage other nations' computer networks, their processors, their digital or critical infrastructure of that particular state. But cyber espionage is not designed to do so. It is just to obtain secrets and information of a particular individual or particular group without knowing to them. All right.
इट इज द मीडियम ऑफ एस्पियोनेज, जासूसी करना जिसे हम कहते हैं, जासूसी करना जिसे हम कहते हैं। ऑलराइट, सो इट कुड बी अगेंस्ट इंडिविजुअल, it could be amid competitors, between rival groups, and of course between governments. It is not amid government but also economic, political and military orders. ठीक है, बहुत बार ऐसा देखने को मिला है कि कोई पावरफुल आपकी कंपनी है, इंटरनेशनल मार्केट पे ग्रो कर रही है, दूसरा देश नहीं चाहता, तो वो इस तरीके के जो साइबर एस्पियोनेज है उनको एक्टिवेट करेगा थ्रू प्रॉक्सी सर्वर्स, थ्रू क्रैकिंग टेक्निक्स, और डैमेज करने की कोशिश करेगा। ठीक है, अदर देन दिस इंडिविजुअल्स के अगर मैं एग्जांपल आपके दूं तो इसमें 2008 का मुझे एग्जांपल याद आता है, स्पाइंग ऑफ जॉन मैकेन एंड ओबामा के जो कंप्यूटर सिस्टम्स थे उनको हैक कर लिया गया था 2008 में इलेक्शंस के टाइम, इन दैट क्रूशियल टाइम। इवन जब 2016 में यूएस इलेक्शंस हुए हैं, ट्रंप जीत गए थे अगेंस्ट हिलेरी क्लिंटन, तो उस टाइम भी बहुत से एलिगेशंस लगाए गए थे दैट रशिया है उसने हैक कर लिया था, और जो वोटिंग हुई है वो एप्रोप्रिएट नहीं है, वो इनएप्रोप्रिएट है। तो इस तरीके के एलिगेशन रशिया को फेस करने पड़े थे, या इस तरीके की प्रोपेगेंडा रशिया ने चलाए थे, एलिगेशन हम सभी के सामने खबरों के माध्यम से आए थे। ऑलराइट, बट अदर देन दिस कुछ और एग्जाम्पल है, जैसे मूनलाइट मेज एग्जाम्पल है 1919 का, बड़ा ही फेमस ये आपका एग्जाम्पल है। अंडर दिस मैसिव डाटा ब्रीच ऑफ क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन took place in USA, which harms the prominent institution of the state like NASA, like military contacts of USA, या फिर बात करें जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी बात करें, या पेंटागन है, these all institutions are suffered from such kind of activities. So these are some. Gillette industrial espionage of 2014 is also another example. So this is all about cyber espionage. Now next move towards cyber terrorism. Now cyber terrorism refers to, or it's a kind of activity which involved terrorist organization, the usage of internet to spread different kind of propagandas, deterrections, affiliation purposes, और to create social terror। ठीक है, हम देखते हैं ना प्रोपेगेंडा जो है डिफरेंट तरीके के, कि कई बार कह दिया जाता है कि भाई हम भारत को अपने कब्जे में लाना चाहते हैं, हम इस्लामिक पैन इस्लामिज्म को पूरी दुनिया में फैलाना चाहते हैं, या कोई सोशल थ्रेट दिया जाएगा दैट वी आर अबाउट टू ब्लास्ट इन दिस पर्टिकुलर रीजन where this particular communities are living। ठीक है, ऐसे सोशल मैसेज जब जाएंगे तो थ्रेट रहेगा। या थ्रू साइबर टेररिज्म डिफरेंट नेशंस के साथ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन टाइप करती हैं, एफिलिएशंस करती हैं, तो यहाँ भी these are the part, these all kind of activities collectively make a cyber terrorism, we can say that। एक जो शब्द इसके लिए इस्तेमाल कर दिया जाता है, साइबर टेररिज्म वर्ड इसके लिए इस्तेमाल कर दिया जाता है। These all activities are illegal, unlawful activities. All right. चलिए, let us understand a bit more about this cyber terrorism through this picture. So, if we talk about the domain of cyber terrorism, so it is cyberspace. As we have already discussed, these all जो ये आपके हम पढ़ रहे हैं जितने भी important concepts, ये सभी आपके साइबर स्पेस का ही पार्ट है। ऑलराइट, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द टूल्स ऑफ अटैक, सो इट इज थ्रू नेटवर्क वॉरफेयर और साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस। ठीक है, तो साइबर टेररिज्म जो है ना, क्या है कि ऐसी इस तरीके के मैसेजेस को है वो स्प्रेड करेगा ग्लोबली, जिससे दहशत फैले, ज़्यादा से ज़्यादा टेरर फैले। पहले टेरर फैलाने के लिए क्या करना पड़ता था, दे हैव टू गो समवेयर else and they have do some blast there to spread terror, but now through digital platform it is quite easy for them, even to trained
the terrorist or to do their mind wash, they can use this digital platform. If I'm talking about motivation, so they have political and social ideologies. I can just give you an example in this context of pan-Islamism. There is an ideology called Wahhabism. Under this, it is said that there shall be a particular religion, there shall be a Islamic world, and the people of other religions have no right to live. ठीक है, इस तरीके की जो आइडियोलॉजी है वो मोटिवेट करती है साइबर टेररिज्म को. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट टारगेट्स, सो सबसे बड़ा टारगेट होता है इसमें क्रिटिकल नेशनल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर. व्हाट इज दिस क्रिटिकल नेशनल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इज, थोड़ा जान लें इसके बारे में. जो भी आपके इम्पॉर्टेंट हाईवेज हैं, रेलवेज हैं, ठीक है, या मैं बात करूं एयरपोर्ट्स हैं, या जितने भी प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशंस हैं किसी पर्टिकुलर स्टेट में, इट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ क्रिटिकल नेशनल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर. सो हमेशा हार्म होने का इनको डर रहता है. साइबर टेररिज्म के थ्रू इन्हीं को टारगेट करने की प्रायोरिटी लिस्ट में यही जो आपके क्रिटिकल नेशनल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, यही उनकी टारगेट लिस्ट में होते हैं. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इम्पैक्ट, इसका क्या इम्पैक्ट है, तो ऑफकोर्स सबसे बड़ा है टेरर. बहुत ज़्यादा फैलता है, लोगों के मन में भय होगा, तो वही टेररिज्म वर्ड से ही का मतलब ये है ना, टेरर फैलाना. जितना ज़्यादा वो टेरर फैलाएंगे उतना ही उन्हें सक्सेस मिल रही है अपने टारगेट में. ठीक है, मास डिसरप्शन और सीरियसली इंटरफेयर इन डिफरेंट क्रिटिकल ऑपरेशंस. ठीक है, सो ये सभी इसके पास हैं. अगर मैं मेथड की बात करूं तो ये सभी जो मेथड इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, टूल्स का प्रयोग करते हैं साइबर टेररिज्म को फैलाने के लिए, ये आपके अनलॉफुल हैं. ये सभी माध्यम जो हैं वो इलीगल हैं. लेट अस मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड. नाउ टाइप्स ऑफ साइबर अटैक्स. सो मालवेयर इज बेसिकली द मोस्ट इफेक्टिव साइबर medium of cyber attack, and there are different kind of malwares like ransomware, spyware, viruses, trojans. ठीक है, तो ये spyware तो viruses तो आपने बारे में सुना ही होगा. ransomware के बारे में थोड़ा मैं बता दूं. ransomware जो है basically it threatens to publish data of publisher, or we can say that to block the access of particular person to his data, and in order to give them that access they are looking for ransom. क्या in short जिसे हम कहते हैं फिरौती मांगना. कि पहले क्या होता था, किडनैप कर लिया गया किसी को, या किसी का सामान आपने अपने कब्जे में ले लिया और उसके बदले में आप क्या मांग रहे हैं, ransom मांग रहे हैं, फिरौती मांग रहे हैं. तो now it all happen in digital world. ठीक है, इसके अलावा स्पाईवेयर है या वायरसेस हैं, ये तो मुझे बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है. स्पाईवेयर इज जनरली यूज फॉर एस्पियोनेज सिस्टम. वायरस जो है इनकरप्ट करने के लिए किया जाता है. ट्रोजन जो है डिसेप्शंस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. नेक्स्ट टाइप ऑफ साइबर अटैक है दैट इज कॉल्ड फिशिंग. सो फिशिंग जो है इट्स अ काइंड ऑफ मेथड टू गैदर पर्सनल इंफॉर्मेशन यूजिंग डिसेप्टिव ईमेल्स एंड वेबसाइट्स. कि किसी की पर्टिकुलर किसी व्यक्ति की पर्सनल इंफॉर्मेशन निकालने के लिए डिसेप्टिव ईमेल्स या डिसेप्टिव वेबसाइट का इस्तेमाल किया जाता है. ऑल राइट, दैट इज सिंपली कॉल्ड फिशिंग, एज यू कैन सी इन दिस इमेज. देखिए, बहुत डिटेल में नहीं, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट इनके समझने हैं, क्योंकि डायरेक्ट सवाल आपके एग्जाम में यहाँ से आने वाले नहीं. ऑल राइट, बट आपको एटलीस्ट इनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. तो अपने आप में ये बहुत बड़े टॉपिक्स हैं, बट अब अगर हम इनकी डिटेल में जाएंगे तो आई थिंक दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू लॉट. जस्ट अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट, क्योंकि दिस टर्मिनोलॉजी आर ऑफन ऑन यूज व्हेन यू आर राइटिंग योर आंसर्स. तो you at least aware about these all terminologies. Next is denial of service attack, or we can say that DOS. So DOS attack are kind of attacks basically
ये हमने पहले भी बात किया था, जो बेसिकली अटैक करता है सामने वाली मशीनरी को अपने कंट्रोल में करने के लिए। इस सामने वाली का जो सर्वर है उसके डेटा बेस को हैक करने के लिए। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था इजराइल के कंटेक्स्ट में, ठीक है, या यूएस के कंटेक्स्ट में ईरान का जो सिस्टम था, मिसाइल सिस्टम था, उसे उन्होंने हैक कर लिया था, ठीक है, डिसेबल्ड कर दिया। तो इस तरीके की टेक्निक का इस्तेमाल करने के लिए डिनायल ऑफ सर्विस अटैक का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है आपका मैन इन द मिडल अटैक। नाउ मैन इन द मिडल अटैक में क्या होता है, एज आई कैन शो यू इन द इमेज, कि जो आपका विक्टिम है और जो आपका सर्वर है, ठीक है, उनके बीच में एक मैन इन मिडल होता है। इस मैन इन मिडल का एक्सेस दोनों की तरफ होता है। और होता क्या है बेसिकली, जब कोई व्यक्ति जो है किसी पर्टिकुलर वेब एप्लीकेशन पर सर्च करता है, ठीक है, और अपनी डिटेल्स उसमें डालता है, मान के चलिए आप फ्लिपकार्ट से कुछ लेना चाहते हैं आप, और उसको परचेज करने के लिए आप क्या डालते हैं, अपनी बैंक डिटेल्स डालते हैं। तो अब क्या होगा, ये जो मैन इन द मिडल है उसे क्या करेगा, स्टील कर लेगा, उसे चुरा लेगा और हैकिंग टुक प्लेस। ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल आपको दिया। इसका इस्तेमाल बहुत बड़े बड़े साइबर जो स्कैम्स होते हैं उसमें किया जाता है, ठीक है। चलिए, सो नेक्स्ट है एसक्यूएल इंजेक्शन। सो एसक्यूएल बेसिकली अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज यूज्ड टू कम्युनिकेट विद डेटाबेस। अगर मैं साधारण वर्ड्स में कहूँ तो एक लैंग्वेज है ये। प्राइमरीली ये जो एसक्यूएल इंजेक्शन है इनका बहुत ज़्यादा चर्चा में रहते हैं, और जो हैकर्स हैं इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें भी क्या होता है, थोड़ा सिंपल वर्ड्स में समझ लेते हैं, दैट हैकर्स विल इंजेक्ट द एसक्यूएल इंजेक्शन, और बेसिकली in simple words malicious code to the particular website which they want to hack, ठीक है। तो जब उसमें malicious code वो इंजेक्ट करते हैं तो उनका जो डेटाबेस है उस पर उनका कंट्रोल हो जाता है हैकर्स का। ऑलराइट, नेक्स्ट है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। नाउ सेम पैटर्न आपका जो एसक्यूएल में है वही क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग में भी होता है। द ओनली डिफरेंट इज कि अब जो हैकर है ये पर्टिकुलर वेबसाइट को हैक नहीं करता, ये जो मैलिशियस कोड है उसे इंजेक्ट करता है किसी विक्टिम के ब्राउजर में, ठीक है। और उस जहां पर उस व्यक्ति ने, विक्टिम ने ब्राउजर किया होता है, इस्तेमाल किया होता है, वहां से वो सभी जानकारी इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट कर लेता है, हैक कर लेता है, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस एंड दिस इज बेसिकली क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस इन मॉनिटरिंग द साइबर क्राइम? सो इट इज डिफिकल्ट फॉर आवर डिफेंस, आवर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और साइबर सेल। इन हैकर्स को पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज पहला हम बात करें सर्वर लोकेशन, इट इज़ डिफिकल्ट टू लोकेट द सर्वर। देखिए बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं और बहुत ही उम्दा टेक्निक्स का, टेक्नोलॉजी का ये इस्तेमाल करते हैं जब इस तरीके की एक्टिविटीज़ को ये कर रहे होते हैं। सो इट इज़ डिफिकल्ट टू लोकेट द सर्वर एंड उनकी लोकेशंस ही नहीं जो है फाइंड आउट की जा सकती है। नॉट वी कांट से दैट नहीं की जा सकती, बट किया जाना शायद थोड़ा मुश्किल रहता है। इसके अलावा जितने भी देश हैं दे हैव डिफरेंट लॉज, ऑल नेशंस हैव डिफरेंट लॉज। समटाइम व्हाट हैपन, अ पर्सन केम इंडिया एंड डिड सम साइबर क्राइम हियर, नाउ दैट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ साइबर क्राइम इन इंडिया, बट दैट पर्सन वेंट बैक टू हिज कंट्री, वहाँ के डोमेस्टिक लॉज के तहत वो क्राइम ही नहीं है, तो फिर क्या होगा, वो व्यक्ति जो है वो छूट जाता है, ठीक है। हमारे साइबर सिक्योरिटी सिस्टम के अंडर उसको नहीं पकड़ सकते हम, या उसे अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। सो जो डिफरेंट लॉज है डिफरेंट नेशंस के, वो भी कहीं ना कहीं इसमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट है इनक्रिप्टेड मैसेज। जनरली
ये जो इस तरीके की एक्टिविटीज़ को अंजाम देते हैं, दे यूज़ द मैथड ऑफ एनक्रिप्टेड मैसेजेस, जिनको डिकोड करना बहुत मुश्किल होता है और बहुत बार डिकोड नहीं किए जा सकते हैं. ऑलराइट, सो सर्टन एक्टिविटीज़ टेक प्लेस. अदर देन दिस कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क्स का ये इस्तेमाल करते हैं एंड इट इज़ वेरी हार्ड टू क्रैक दैट नेटवर्क्स. तो बहुत सी चैलेंजेस साइबर क्राइम्स की मॉनिटरिंग में फेस करनी पड़ती हैं हमारी डिफरेंट बॉडीज़ को, नोडल एजेंसीज को. नेक्स्ट हम बात करेंगे मोटिव्स क्या होते हैं. व्हाट आर द मोटिव्स बिहाइंड द साइबर अटैक्स. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द मोटिव्स बिहाइंड द साइबर अटैक्स, तो देखिए हर कोई अमीर बनना चाहता है और उसके लिए लोग क्या है, शॉर्टकट्स अपनाते हैं. सो कमर्शियल गेन इज द प्राइमरी वन एंड ड्यू टू दिस दे आर हैकिंग द बैंक अकाउंट्स और बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. ऑलराइट, other than this they attack the critical assets of the nations. ठीक है, बहुत बार देखा गया है ना, ये तो जैसे ताज होटल पे अटैक किया गया था, तो दैट वाज अ ट्रेडिशनल अटैक. पर मान के चलिए अगर 10 साल के बाद ताज होटल पे अटैक करना होगा तो कोई बम नहीं फोड़ेगा. हो सकता है वहाँ के सिस्टम को हैक कर ले या पार्लियामेंट्री सिस्टम को हैक कर ले. ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन बड़े या जो हमारी प्रोमिनेंट कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके कंप्यूटर मैकेनिज्म को हैक कर लिया जाए एंड उनकी जो इंफॉर्मेशन है उसे लीक कर दें ताकि उन्हें डैमेज ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाया जा सके. इट इज़ मोर इफेक्टिव एंड वी कैन से दैट समवेयर एल्स की सिक्योर भी है उन लोगों के लिए काफ़ी हद तक, क्योंकि अभी भी उतनी अवेयरनेस जो है वो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड लोगों के बीच नहीं है. नेक्स्ट है टू पेनिट्रेट इनटू बोथ कॉर्पोरेट एंड मिलिट्री डाटा. ये मैं बात कर चुका हूँ पहले भी, है ना. इस तरीके की एक्टिविटीज़ का जो मेन मोटिव होता है कि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं या जो मिलिट्री हैं उनकी जो भी सीक्रेटिव इंफॉर्मेशंस हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उनके बारे में जानकारी मिल सके. ठीक है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड को किस तरीके से डैमेज करना है उसके रिगार्डिंग इस तरीके की साइबर एक्टिविटीज़ जो हैं घटनाएं घटित होती हैं. साथ ही साथ पॉलिटिक्स में भी इसका डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म्स पे और पॉलिटिक्स में भी इसका बहुत इस्तेमाल होता है. कई बार किसी पॉलिटिशियन को डिफेम करना होता है ना, तो उसको से रिलेटेड वीडियोस जो हैं पुराने वीडियो, शायद 10-20 साल पुराने वीडियोस थे, उनको वायरल कर देंगे जो शायद 20 साल पहले वो व्यक्ति कुछ और था. जैसे मैं मनोज तिवारी जी का एग्जांपल देता हूँ. व्हेन ही फाउट इलेक्शन अगेंस्ट अरविंद केजरीवाल जी सीएम बनने के लिए, तो उनके बड़े पुराने जो, बिकॉज ही वॉज अ सिंगर एक टाइम पे 15-20 साल पहले शायद वो म्यूजिक इंडस्ट्री का हिस्सा थे, भोजपुरी फिल्म स्टार भी थे, है ना. तो उनके उस तरीके के वीडियोज जो हैं डांसिंग के या सिंगिंग के वो रिलीज कर दिए. ठीक है, अब एक वी कैन से दैट इट्स एन एक्टिविटी टू डिफेम हिम. ठीक है, तो सर्टेन एक्टिविटीज आर टेकिंग प्लेस इन आवर सराउंडिंग्स. Now, let us talk about cyber security. So, cyber security in simple word is a kind of activity which protect our computer programs, our software, hardwares, our telecommunication modes, different different elements of cyberspace, and all the cyber threats which we receive off and on. Moreover, it is also very useful for the national security of the nation, which is the most important thing for every citizen of the country. And here cyber security is important. It is a guardian of the positive side of the cyberspace, which we have discussed initially. Alright, move towards next. Now, need for cyber security. ठीक है, क्यों इतनी ज़रूरत है हमें साइबर सिक्योरिटी की. तो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले बता चुका हूँ. बहुत से इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनका जो साइबर सिस्टम है अगर वो हैक हो जाएगा तो पूरे देश का जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, डिफेंस मैकेनिज्म है, वो कोलैप्स हो जाएगा. तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हमारा जो साइबर सिक्योरिटी है उसको अच्छे से प्रोटेक्ट कर सके. इट आल्सो हेल्प to continue different kind of businesses,
चाहे छोटे लेवल पर हो, चाहे कॉर्पोरेट, हाई कॉर्पोरेट, एलीट कॉर्पोरेट वर्ल्ड की मैं बात करूं, तो हर जो प्लेटफॉर्म है वो उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है. इट्स नॉट हेल्पफुल टू सिक्योर द डाटा ऑफ पर्टिकुलर सिटीजन और इंडिविजुअल, बट आल्सो हेल्पफुल टू सिक्योर गवर्नमेंट्स डाटा और इंफॉर्मेशन. ऑलराइट, तो ये तमाम चीज़ें हैं जो हम मदद करते हैं. जैसे बहुत से इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिए हैं. डिजिटल इंडिया है, मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटीज़ का कॉन्सेप्ट है, ई गवर्नेंस की बात भारत सरकार करती है. तो अगर इन सभी प्लेटफॉर्म को सिक्योर ही नहीं किया जाएगा तो क्या कोई भी व्यक्ति इन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना चाहेगा? ऑफ कोर्स नॉट. ऑलराइट, सो हियर वी कैन से दैट देयर इज अ लॉट ऑफ नीड ऑफ cyber security in India. Now, India's vulnerability on cyberspace. क्या vulnerability है आपकी cyber space में इंडिया की? तो जैसा मैंने अभी कहा that India is a big nation and every year number of people are using internet, they are using smartphones, like different other electronic gadgets. अभी मैंने 2020 का आपको डाटा दिया था नीति आयोग का, जिसमें मैंने कहा था that 730 मिलियन के आसपास जो लोग इंटरनेट यूजर के आसपास जो लोग हैं, दे आर यूजिंग इंटरनेट इन इंडिया. ठीक है, जब इतने बड़े तबके पर पार्टिसिपेशन बढ़ेगा आपका साइबर स्पेस में, तो खतरा भी रहेगा आपके साइबर एस्पियोनेज का, डिफरेंट काइंड ऑफ साइबर क्राइम्स का. ठीक है, ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन का धमकियां मिलती है ना, कम्युनिज्म को फैलाया जाता है डिफरेंट रिलीजन्स द्वारा, है ना. तो ये कुछ तरीके हैं. साथ ही साथ इट्स अ थ्रेट फॉर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है जो बहुत प्रोमिनेंट है. जैसे न्यूक्लियर प्लांट्स हैं आपके, या रेलवे ट्रैक्स है विच इज कंसीडर्ड द लाइफ लाइन ऑफ एवरी नेशन, है ना, या डिफरेंट अदर इंस्टीट्यूशन वी कैन से दैट. इनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो है हमें साइबर सिक्योरिटी चाहिए, लेकिन भारत में जो है उतना ये मजबूत स्ट्रक्चर नहीं है, उतना मजबूत ये ढांचा नहीं है. इसलिए थोड़ा सा वल्नरेबिलिटी है इंडिया की व्हेन वी टॉक अबाउट साइबर स्पेस. वी नीड अ वेरी फर्म साइबर सिक्योरिटी फर्स्ट. एंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस कंटेक्स्ट में है वो है साइबर अवेयरनेस. जितनी ज़्यादा साइबर अवेयरनेस बढ़ेगी लोगों के बीच, उतना ही पॉसिबिलिटी जो है ग्राफ है आपका साइबर क्राइम का वो नीचे आते जाएगा. चाहे मैं नेशनल लेवल की बात करूँ या मैं किसी पर्टिकुलर स्टेट के कंटेक्स्ट में बात करूँ. ऑलराइट, नेक्स्ट है गवर्नमेंट्स करंट प्रोविजंस फॉर साइबर सिक्योरिटी. सो 2004 में आपकी सर्ट ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस, फॉर्म्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड इट इज बेसिकली ए नेशनल नोडल एजेंसी. क्यों बनाई गई थी, किसके द्वारा बनाई गई थी, उसके बारे में जान लेते हैं. तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है इसके अंडर ये ऑपरेट करती है. बनाने का कारण यही था कि 2004 के आसपास जो साइबर क्राइम था भारत में वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया था. एंड इट वाज अ राइट टाइम, राइट तो नहीं कहूँगा, ऑलरेडी बहुत देरी हो चुकी थी, बट हाँ 2004 तक आते आते ये रियलाइज भारत सरकार को हुआ कि एक ऐसी बॉडी नोडल एजेंसी ज़रूर होनी चाहिए, जिसका प्राइमरी गोल है कि ऐसी एक्टिविटीज़ को डिटेक्ट करना और डेटा कलेक्ट करना, एनालाइज करना और उसे डिसमिनेट करना. साथ ही साथ डिसमिनेट करने के बाद उस इंफॉर्मेशन को सही जो आपके एजेंसीज हैं उन तक पहुंचाना, जो हमारी खुफिया विभाग हैं, हमारी इंटेलिजेंस है या हमारे पुलिस डिपार्टमेंट है, उन तक वो सही तरीके से सही टाइम पर पहुंचाना, ताकि पॉसिबिलिटीज़ को, साइबर क्राइम की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उसे कर्टेल किया जा सके. अगर रोक सकते हैं तो ज़रूर रोका जाए, या अगर इसके तहत जो भी लोग हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जा सके. ऑलराइट, so these are a kind of activities which have been done by computer emergency response team to surveillance the cyber space of a country. Alright, so we have also signed a cooperation pact with some nations pertaining to cyber security. मलेशिया, सिंगापुर, जापान के साथ हमने साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड इस तरह की कुछ डील्स की हैं जो काफ़ी हमें मदद करती हैं. लेकिन अभी भी बहुत से देशों के साथ ऐसे अगर डील हो जाए तो बहुत मदद मिलेगी
स्पेशली जो एक ग्रेट एक्सटेंट में बड़े लेवल पर हम कहते हैं इस तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं उनको रोकने में. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द स्टेट ऑफ हिमाचल. सो हियर वी डिस्कस द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी. किन किन पहलुओं का, किन किन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स का जिक्र होता है साइबर सिक्योरिटी के टॉपिक के अंडर. वी understand about different terminologies like cyber warfare, cyber espionage, cyber terrorism, and how they were controlled by the medium of cyber security and through cyber awareness. All right, now let us talk about state. हिमाचल प्रदेश के कंटेक्स्ट में बात करते हैं. Let us take an overview pertaining to हिमाचल प्रदेश. If we compare the data of हिमाचल प्रदेश with other states, तो हमें लगेगा कि नहीं, साइबर क्राइम का जो रेट है बहुत कम है हिमाचल में, इसमें कोई खराबी नहीं है. इवन if we see the data of 2-3 years back, we realize कि उतना डाटा जो है नहीं बढ़ा है. But just if we see the data of last year, so it is quite shockingly for all of us कि 2019 से 2020 आते आते 88% जो आपका हिमाचल प्रदेश में साइबर क्राइम का रेट है वो बढ़ा है. तकरीबन 1535 कंप्लेंट जो हैं वो दर्ज की गई हैं. इसका ये मतलब हुआ हर दिन तकरीबन 8 से 9 केसेस जो हैं वो दर्ज किए गए हैं. एंड वी कंपेयर दिस डाटा विद द डाटा ऑफ 2019. सो पर डे जो कंप्लेंट्स थी उस टाइम वो 4 से 5 थी. ऑलराइट, तो कहीं ना कहीं भी हम कह सकते हैं इसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि जो अब कोविड की वजह से जो लॉकडाउन हुआ है, लोग काफ़ी घरों में बैठे हैं, उनका जो डिजिटल एक्टिविटी है, चाहे वो सोशल प्लेटफॉर्म पर हो, चाहे वो फाइनेंशियल पर्पसेस के लिए हो या ऑफिशियल पर्पसेस के लिए हो, वो बढ़ा है. और जितना हमने पहले ही बात की स्टार्टिंग में, जितना इंगेजमेंट बढ़ेगा साइबर स्पेस में लोगों का, उतनी ही पॉसिबिलिटी बढ़ेगी साइबर क्राइम की भी. ऑलराइट, चलिए. सो अदर देन दिस, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट प्राइमरीली साइबर क्राइम में किनको टारगेट किया जाता है, ठीक है, तो यस हम बात करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, ठीक है, हम बात करते हैं और कई तरीके के फ्रॉड्स की. बट जो सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम की एक्टिविटीज़ हमें देखने को मिली है, दैट इज़ अगेंस्ट वुमेन. अकॉर्डिंग टू द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, 60% जो है ऐसे केसेस जो हैं अगेंस्ट वुमेन देखने को मिला. 60% तक हाइक गया है साइबर क्राइम का अगेंस्ट वुमेन. ठीक है, सो बहुत बड़ा ये मार्जिन है और तकरीबन 60 से 90 ऐसे केसेस हर हफ्ते जो हैं दर्ज किए गए हैं हिमाचल में. तो ये कोई बहुत पॉजिटिव चीज़ तो नहीं है. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट किस तरीके के इसमें केसेस हैं, सो मोस्टली द केसेस जो हैं फेक प्रोफाइल्स बनाते हैं लोग, है ना, और देन दे स्टार्ट मेकिंग फ्रेंडशिप विद डिफरेंट गर्ल्स एंड देन दे स्टार्टेड चीटिंग, या उनको किसी तरीके के वर्चुअली सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल सेंड करना हो या ब्लैकमेल करना, मॉब्ड फोटोज़ या जो फेक चैटिंग है उसका हवाला देते हुए ब्लैकमेल करना, है ना, इस तरीके की एक्टिविटीज़ जो हैं दर्ज की गई हैं. या वर्चुअल स्टॉकिंग की हम बात करें, सो दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ जिसके तहत जो है 60% तक साइबर क्राइम रिकॉर्ड किया गया है हिमाचल में. चलिए, नाउ लेट अस टॉक अबाउट व्हाट इनिशिएटिव्स have been taken by the government of Himachal in this regard. So प्राइमरी जो हिमाचल गवर्नमेंट का गोल है इसके तहत वो ये है कि लोगों के बीच जितनी ज़्यादा अवेयरनेस फैलाई जाए उतनी ही कम है. हाउ मच पीपल आर गेटिंग अवेयर अबाउट साइबर क्राइम्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स, उतनी ही कमी आने के चांसेस होंगे. Other than this, they are also, government of Himachal also paying heed towards कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स. गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल डिसाइडेड कि जो भी आपके लॉ इन्फोर्समेंट पर्सनल हैं उन सभी को साइबर क्राइम की जानकारी होनी चाहिए, चाहे प्रोसिक्यूटर्स हैं, चाहे जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, आपकी
चाहे पुलिस ऑफिसर्स हैं, सभी को अच्छे से साइबर क्राइम की जानकारी होनी चाहिए. Other than this, government has also decided to improve the different cyber forensic facilities in a state. All right, because we are living in a digital world. अब वो ज़माना चला गया ना कि आप बैंक जाके पैसे निकालते थे, आप जस्ट क्लिक करते हैं, पैसे का लेन देन आप कर लेते हैं अपने फ़ोन से ही. आप बिजली का बिल, अब एक समय होता था आज से 4-5 साल पहले, लोग बिजली के दफ्तरों में, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जाके पे करते थे. बट नाउ दैट टाइम हैज़ गॉन. Just by a single click of your phone, you can pay your all dues. All right, and these all activities are the part of e-services. चलिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके कंटेक्स्ट में. जो इसमें सबसे बड़ा रोल हिमाचल गवर्नमेंट ने करने की कोशिश की है, इनिशिएटिव लिया है, दैट इज कि जो आईटी पॉलिसी है 2000 की, उसे स्टेट में इम्प्लीमेंट करना, ताकि जो इस तरीके के क्राइम रेट है वो कम हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं वो अवेयर हों अबाउट साइबर क्राइम एंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी. ठीक है. सो इसके अलावा भी और स्टेप्स लिए हैं हिमाचल सरकार ने. अभी हिमाचल सरकार विचार कर रही है कि अलग से एक साइबर फोर्स बनाई जाए, क्योंकि पुलिस फोर्स को और बहुत से काम में एंगेजमेंट होता है, तो उतना इफेक्टिवली शायद जो है वो साइबर क्राइम्स के साथ डीलिंग ना हो सके. तो एक पर्टिकुलर फोर्स इसके लिए अलग होनी चाहिए जो मॉनिटर कर सके, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स पर चेक रख सके या डिफरेंट तरीके की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर सके. इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल जो है कोलैबोरेटिंग विद सर्ट कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है, उसके साथ कोलैबोरेट किया है. साथ ही साथ CDEC जो है सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग, उनके साथ भी कोलैबोरेट किया है. ठीक है. अब थोड़ा सा और इसके बारे में जानते हैं और क्या स्टेप्स हमारी सरकार ने साइबर क्राइम को कम करने के लिए लिए हैं या हमारी साइबर सिक्योरिटी को स्टेट की स्ट्रेंथन करने के लिए किए हैं. तो इसमें एक बड़ा कदम लिया है 2016 में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन को एस्टैब्लिश करके. इट इज़ एस्टैब्लिश इन शिमला. इसका जो हेडक्वार्टर है वो शिमला में है बेसिकली. ठीक है. इसका जो प्राइमरी गोल है वो है टू स्प्रेड अवेयरनेस अमंग मासेस. ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में साइबर जो अवेयरनेस है उसको बढ़ावा देना. साथ ही साथ जितने भी पुलिस स्टेशंस हैं स्टेट में या जितने भी पुलिस स्टेशंस हेडक्वार्टर्स हैं उनके साथ कनेक्टिविटी को बनाए रखना. ऑल राइट. चलिए, नेक्स्ट है क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, CCTNS. सो ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट थी 2017 में. इन 2017 हिमाचल प्रदेश था वो पहला स्टेट बना था जिसने अपने वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स में क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम को एस्टैब्लिश करवाया. और इसका सबसे बड़ा जो रीज़न था वो ये था कि इससे पहले क्या था कि पब्लिक को पुलिस स्टेशन जाके अपनी जो कंप्लेंट्स थी वो दर्ज करानी पड़ती थी. ना फ़ोन के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के माध्यम से आप घर बैठे भी ऐसा कर सकते हैं. या अगर साइबर रिपोर्टिंग करनी है आपको तो उसका भी प्लेटफॉर्म यहाँ से मिलता है इसके ज़रिए. ऑलराइट. अगर मैं बात करूँ इसके लिंक की या अगर मैं बात करूँ इसके हेडक्वार्टर की, तो पुलिस स्टेशन संजौली में इस तरीके का पहला हेडक्वार्टर जो था वो इस्टेब्लिश किया गया है. सो बहुत प्रोमिनेंट था. मैंने जैसे कहा कि जो पुलिस आपका साइबर पुलिस सेल बनाया गया है उसका प्राइमरी गोल यही है और उसके तहत जो फर्दर जैसा 2017 में क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम बनाया गया है, उसका प्राइमरी गोल भी यही है कि जितने भी पुलिस स्टेशन हैं हिमाचल में उसमें से तकरीबन 114 जो पुलिस स्टेशन हैं और अदर देन दैट 177 जो साइट्स हैं उनके साथ कैसे जो है जो अपना कनेक्शन है वो कैसे बना के रखना है, कैसे उनके साथ तालमेल बना के रखना है.
साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट जो हेडक्वार्टर्स हैं, सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनके साथ किस तरीके से कोऑर्डिनेशन बनाएं। सिर्फ यहाँ तक ही नहीं, जो CID क्राइम ब्रांच सेल है, तकरीबन 14 कंट्रोल रूम्स इसके तहत आते हैं, फिंगरप्रिंट ब्यूरो है, फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्रीज हैं, ठीक है। तो ये सारे जो हैं, इनके साथ अपनी तालमेल को कैसे बनाए रखना है, इस पर बात करने की। क्योंकि सिर्फ एक सेंटर में, शिमला में अगर आप एक सेंटर बना दें तो काफ़ी नहीं होगा, और इसी को ध्यान रखते हुए 16 CCTNS जो ट्रेनिंग सेंटर हैं उस स्टेट में इस्टेब्लिश किए गए हैं। तो ये कुछ बेसिक है। यहाँ से सवाल कई बार 4 नंबर का आपका डायरेक्ट सवाल बन सकता है, अबाउट क्राइम एंड क्रिमिनल नेटवर्क सिस्टम इन हिमाचल प्रदेश। ऑलराइट, नाउ इसके अलावा भी बहुत से ऐसे स्टेप्स हैं जो हिमाचल सरकार ने लिए हैं, लाइक हिमाचल प्रदेश CCTV सर्विलेंस मैट्रिक्स एंड कमांड सेंटर, शिमला में ही ये किया गया, लास्ट ईयर की ही बात है, लॉकडाउन में ही तकरीबन 65 दिन में ये जो CCTV सर्विलेंस मैट्रिक्स एंड कमांड सेंटर था, ये तैयार कर दिया गया था, एक रिकॉर्ड टाइम में ये बनाया गया था। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट ने एक MOU साइन किया है IIT मंडी के साथ। IIT मंडी के साथ एक MOU साइन किया है, जिसके तहत क्या है कि जो आपके पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको साइबर नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा मिले, ठीक है। उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो IT का ज्ञान है, साइबर सिक्योरिटी का नॉलेज है, साइबर क्राइम किस तरीके के हैं या किस तरीके की पुलिसिंग में काम किया जा सकता है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो सकता है, उनके बारे में ट्रेनिंग देना, अवेयर करना IIT मंडी का काम होगा। इसके तहत हम बात कर सकते हैं जैसे अबाउट न्यू टेक्नोलॉजीज़, नई नई टेक्नोलॉजीज़ जिनका इस्तेमाल सिक्योरिटी के लिए किया जा सकता है, उनकी जानकारी देना, ट्रैफिक मैनेजमेंट में हाउ टेक्नोलॉजी कैन हेल्प अस, चलानिंग के बारे में बताना, ठीक है। पेट्रोलिंग सिस्टम जो है उसके बारे में, उसमें किस तरीके से आप टेक्नोलॉजी या साइबर सिक्योरिटी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और बहुत से तमाम जो एरियाज इसके तहत हैं, फेक पोर्टल्स हैं या साइबर फोरेंसिक्स की बात होती है, ठीक है। सो दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ जो आपका साइबर नॉलेज का पार्ट है, और हर जो पुलिस ऑफिशियल है उसको इसकी जानकारी होनी चाहिए। ऑलराइट, देखिए मैंने कहा ना, जितना ज़्यादा इंगेजमेंट बढ़ेगा इन लोगों का, उतना ही जितना साइबर अवेयरनेस बढ़ेगा, तो जो आपकी गवर्नमेंट बॉडी है जिसमें प्राइमरी हम बात करें तो पुलिस फोर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जब तक पुलिस फोर्स जो है वही साइबर अवेयरनेस उनके बीच ही नहीं होगा तो हाउ दे कैन स्प्रेड, ठीक है। दे हैव टू डील विद सर्टेन मैटर्स एवरी डे, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ देम टू हैव अ गुड नॉलेज ऑफ साइबर सिक्योरिटी और different aspects of cyber crime and cyber security and other new technologies which could help them for their effective policing. Now if we talk next, so 2021-22 का जो बजट था उसमें चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर जी ने प्रपोज किया है कि तकरीबन 757 जो न्यू CCTV कैमराज हैं उनको इंस्टॉल किया जाएगा डिफरेंट पुलिस स्टेशंस में, और तकरीबन जो 651 CCTV कैमराज हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा, सॉरी, है ना। अपग्रेडेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज तो एक बार आपने कैमराज लगा दिए कभी फिर उनकी तरफ देखा ही नहीं तो दैट इज़ यूजलेस। और तकरीबन इस पर जो अलॉट किया गया है पैसा, उसका अमाउंट भी है 9 करोड़ के आसपास। सो these are some steps we can say that government of Himachal is taking to make cyber security effective in a state। साथ ही साथ किस तरीके से साइबर क्राइम की पॉसिबिलिटीज़ को कम किया जा सकता है उसके बारे में भी बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स लॉन्च किए एंड फर्दर भी होंगे, तो बहुत अच्छी बात है। नाउ दिस इज ऑल अबाउट व्हाट गवर्नमेंट हैज डन। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द चैलेंजेस फेस्ड बाय गवर्नमेंट, ठीक है। तो सबसे पहला है इंक्रीज्ड यूज ऑफ मोबाइल टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट बाय पीपल। अब तादाद इतनी बढ़ गई है भाई कि कंट्रोल रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इवन द यूजर्स आर वेरी क्लेवर, फेक आईडीज, फेक सिम्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और इसलिए तो अब लॉज डे बाय डे स्ट्रिक्ट हो रहे हैं ना, ताकि इस तरीके की मिस हैपनिंग्स ना हो। इसके अलावा
प्रॉपर जो आपका सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी कहीं ना कहीं कमी हमें देखने को मिलती है। और जब तक प्रॉपर फॉरेंसिक लैब्स नहीं है, ठीक है, या अभी तक भी बहुत से जो पुलिस ऑफिसर्स हैं दे आर नॉट वेरी वेल ट्रेन्ड सो फार, अभी भी बहुत सीखना उन्हें बाकी है। या अदर जो आपके ऑफिशियल्स हैं गवर्नमेंट, दे आर नॉट दैट मच अवेयर अबाउट cyber security and other technologies which could help them in their working or curtail the possibility of cyber crime in their work। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ साइबर सिक्योरिटी बहुत बड़ा कारण है ना। तो कह सकते हैं कि जब तक ये चीज़ें रहेंगी, ये चैलेंजेस हमारे सामने रहने ही रहने हैं। चलिए अगला सवाल एक और आपका बन जाता है, हाउ टू कर्ब साइबर क्राइम इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो इसके लिए अभी जो हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े थे, क्वेश्चन भी आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि हम कह सकते हैं कि जो आईटी पॉलिसी है 2000 की, उसे इम्प्लीमेंट करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्हेंसमेंट एंड इम्प्रूवमेंट हो आईटी सेक्टर का। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर लोग और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं अवेयर होंगे तो पॉसिबिलिटी बढ़ेगी साइबर क्राइम को टैकल करने के लिए करने की स्टेट में। साथ ही साथ कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स जो हम गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल ने लिए हैं, जैसे आपके साइबर सेल जो है, आपका स्टेट साइबर सेल है पुलिस का, शिमला में इस्टेब्लिश किया गया है और उसके तहत जितने भी आपके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं या अदर पुलिस स्टेशन हैं उनको रखा गया है उसके कंट्रोल में। तो बहुत अच्छी ये बात है, इस तरीके की और सेल्स जो हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टेट इस्टेब्लिश होने चाहिए। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं कोलैबोरेशन ऑफ आईआईटी मंडी या सर्ट जैसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक नोडल एजेंसी है जिसका काम ही है साइबर सिक्योरिटी की का सर्विलेंस करना। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये इस तरीके के जो स्टेप्स हैं ये पॉसिबिलिटी को कम करते हैं साइबर क्राइम की हिमाचल में। ऑलराइट, इसके अलावा जो मीडिया कवरेज है दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। साइबर क्राइम के जो केसेस उनको हाईलाइट करना चाहिए न्यूज़ चैनल्स में या न्यूज़पेपर्स में, ताकि लोगों के बीच इस प्रकार की जो एक्टिविटीज़ हैं उनकी जानकारी उन्हें मिले। दे आर गेटिंग मोर अवेयर अबाउट सर्टेन एक्टिविटीज़, है ना। तो अवेयरनेस कैंपेन्स चलाने चाहिए। बहुत से जो NGOs हैं दे हैव टू वर्क ऑन दैट, या जो आपकी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो सरकारी संस्थाएं हैं, और पुलिस डिपार्टमेंट है या और इस तरीके की एजेंसीज हैं, या सरकार को स्पेसिफिकली इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बिल्डअप करनी चाहिए जो स्प्रेड कर सकें अवेयरनेस कैंपेन्स जो हैं वो डिफरेंट जो पार्ट्स हैं स्टेट के उनमें लगवा सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं साइबर क्राइम या साइबर सिक्योरिटी के बारे में अवेयर हों। ऑलराइट, सो here we can say that here we complete आज का जो हमारा टॉपिक है उसे हम ख़त्म करते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से हिमाचल वाले पार्ट में तकरीबन 1-2 सवाल जो हैं आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ऑलराइट, सो नाउ आई वुड लाइक टू आस्क सम क्वेश्चंस। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इस तरीके के सवाल जो आपकी परीक्षाओं में हैं वो पूछे जा सकते हैं, चाहे 4 नंबर का सवाल आए, 8 नंबर का या 20 नंबर का सवाल आए। लाइक राइट 2 important रोल्स ऑफ साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, सो अ वेरी प्लेन क्वेश्चन। तो अगर आपने अभी हमने डिस्कस किया है अबाउट साइबर पुलिस स्टेशन इन हिमाचल प्रदेश, तो उसके बारे में आप जानते हैं, यू कैन राइट। ठीक है, या फिर इवेल्युएट द चैलेंजेस फेस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉर साइबर सिक्योरिटी ऑफ सिटीजन्स, है ना। अभी चैलेंजेस की हमने बात की थी, कुछ चैलेंजेस हमारे सामने हैं विच वी आर फेसिंग, तो उनकी हम बात कर सकते हैं, उन फैक्ट्स को हम सामने रख सकते हैं। इसके अलावा व्हाट आर द फॉलोइंग एक्शंस गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल हैज़ टेकन टू मेंटेन द साइबर सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। देखिए ना, सेकंड क्वेश्चन के बाद तो सीधा ही सवाल है, सीधा सवाल पूछ लिया है कि आपने जो चैलेंजेस हैं वो लिखने हैं, एक इंट्रोडक्शन लिखिए, थोड़ा सा आप इलेबोरेट करेंगे
आपने जो बेसिकली चैलेंजेस हैं उनको, और थोड़ा सा एंड में आप इवेल्युएशन जो है अपने इस क्वेश्चन का करेंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, बाकी दीज क्वेश्चंस आर फॉर यू टू आंसर, और ये सवाल जो हमने पढ़ा है उसी में से है, ऐसा नहीं कुछ बाहर से है। What are the following actions government of Himachal has taken to maintain the cyber? Now this is a 20 marks question। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन भी है, तो आपको उसी तरीके से लिखना है, एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन देना है जिसमें आपको दो साइबर स्पेस का इम्पोर्टेंस बताना है, उसमें साइबर सिक्योरिटी की सिग्निफिकेंस को समझाना है, शॉर्ट में 2-3 लाइंस में ही ये चीज़ें एक्सप्लेन करनी है, और इसकी इम्पोर्टेंस जो कुछ डाटा जो हमने पढ़ा था करंट का वो आप एड ऑन कर सकते हैं इसमें। उसके बाद जो पॉइंट्स हमने पढ़े थे हिमाचल गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, यू कैन ऐड दैट, देन यू कैन जो है उसकी इम्पोर्टेंस को बताएं एंड में, और साथ ही आप अपना कंक्लूजन लिख सकते हैं। ऑलराइट, सो ये कुछ मैंने शॉर्ट में आपको बताया है किस तरीके से आपने आंसर करने हैं, एंड आई होप कि दिस सेशन ऑफ और हेल्प यू लॉट टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ साइबर क्राइम। ठीक है, इन हिमाचल प्रदेश आल्सो जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं या बेसिक कॉन्सेप्ट हैं साइबर सिक्योरिटी का, वो भी आपको समझ आया होगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज सेशन।